Hello everybody. Welcome to iExamB's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty at iExamB. आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है. Those who are preparing for SEBI Grade A Legal Officer Examination 2023. So before I start with my discussion relating to 5 most important topics of constitutional law which you must do, don't forget to subscribe to our YouTube channel. And अगर आपके कोई भी queries हैं, you can write to us at hello@iexamb.com. You can also call on the number and directly आपके जो भी queries है या course related कोई आपको details चाहिए तो आप website भी visit कर सकते हो और सारी details access कर सकते हो. इस वीडियो के comment section में भी आप हमें directly reach कर सकते हो. आपके अगर कोई भी queries हैं जिस पर आपको videos चाहिए या कोई भी डाउट्स है relating to exam preparation, you can write to us at iExamB. So let us start with the discussion. Constitution of India is a very high weightage topic for all law officer examinations. Similarly, for SEBI Grade A Legal Officer Examination 2023 also, Constitution has a weightage of around 10%. You can check the syllabus defined है काफ़ी SEBI एग्ज़ाम का, पेपर 2 का सिलेबस. सो कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी अच्छा वेटेज है. सो उस हिसाब से आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल द 5 मस्ट डू टॉपिक्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन दिस वीडियो. आई विल ट्राई टू कम अप विद अ सिमिलर वीडियो फॉर ऑल द रेस्ट सब्जेक्ट्स. सो स्टे ट्यून्ड एंड टेक बेनिफिट एंड नोट डाउन दीज टॉपिक्स. और इन टॉपिक्स को जो मैं 5 टॉपिक्स आपको हर एक सब्जेक्ट से दूंगी, ये सारे टॉपिक्स आपको श्योर शॉर्ट करके जाने ही हैं. ये आप ध्यान में रखिए. Why am I discussing these 5 important topics from all the subjects? Let us understand the importance of that first. See, you are going to get questions which are going to be very selected from all the subjects. This is something which is the reality. The exam is competitive in nature. So if you are well versed with the most important topics which are must do from each subject, I'm not saying that don't do any other topic, but the thing is that your focus should be on some of the prominent topics from each subject, because ये exams probabilities के हिसाब से देने पड़ते हैं. आप 100% predict तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप correct direction में जा रहे हो तो there are more chances that you will qualify the examination. So this is the strategy which you have to follow. So out of that strategy only I am giving you 5 must do topics for all the subjects. This will definitely help you. ये analysis आप खुद भी कर सकते हो. इसके लिए आप अगर previous year papers check out करोगे, mock test check out करोगे which are free at iExamB, you can check it and prepare 50% faster. So this is how you can prepare smartly. सो लेट स्टार्ट. एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो एक बार फिर से समझ लेते हैं. पेपर 1 इज़ जनरल एंड पेपर 2 जो आपका लॉ का रहेगा उसमें से आपको MCQs होंगे एंड दैट विल बी ऑफ 100 मार्क्स. ड्यूरेशन इज़ 40 मिनट्स में आपको सारे सॉल्व करने होंगे. तो अगर आपका नॉलेज एकदम पक्का है तो आप टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से कर पाओगे. Try to solve mock tests for that. Similar pattern you are having for phase 2 also. Paper 2 is going to be law. So this is going to be the most expected and the most prominently asked topics से ही questions आएंगे आपको. तो ये आपको ध्यान में रखना होगा लॉ के लिए, क्योंकि MCQ पैटर्न ही है दोनों भी फेजेस में. So 5 must do topics from constitutional law or what? फर्स्ट थिंग आई विल टेल यू, एक जनरल आइडिया तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये टॉपिक ही वैसा है. अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो टॉपिक है ये काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है. UPSC MPSC हो या और भी कोई एग्जामिनेशन हो, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो सब्जेक्ट है इस पर आपको काफ़ी सारा मटेरियल भी मिल जाता है. लेकिन द थिंग इज़ दैट आपको राइट डायरेक्शन नहीं मिलता. अभी जैसे आप सेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे. आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कौन से होंगे. सो ये आपको डिटरमाइन करना आना चाहिए, वन थिंग. लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो 100% हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से. And starting with that is preamble and its related amendments. preamble तो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन उसके जितने भी टर्म्स हैं और उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स है इस पर काफ़ी टाइम क्वेश्चन आता है. सेबी में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है. यू कैन चेक द प्रीवियस ईयर पेपर्स. iExamB पर भी जाके आप प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो. टेक आउट अ प्रिंट ऑफ इट एंड मेक एन एनालिसिस. तो ये आपको 100% करना है, थरोली करना है.
डोंट जस्ट रीड द बेयर एक्ट एंड लीव, डू इट फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑल्सो. ओवरऑल एक एंगल के तौर से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रिपेयर करना होगा, अमेंडमेंट्स भी प्रिपेयर करने होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है. देन फंडामेंटल राइट्स एंड सम प्रोमिनेंट अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू दैट ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू ओवर हियर राइट टू प्रॉपर्टी है. राइट टू प्रॉपर्टी कौन से अमेंडमेंट से रिमूव हुआ ये आपको पता होना चाहिए. अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है तो अभी उसका स्टेटस क्या है, 300A भी आपको पता होना चाहिए. सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग डोंट जस्ट स्टिक टू वन एंगल बट ऑल द पॉसिबल एंगल्स फ्रॉम विच क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दैट टॉपिक. ट्राई टू कवर दैट टॉपिक comprehensively. So fundamental rights is 100% very important for all the exams and for SEBI as well. Directive principles of state policy you have to do very well. And next thing is that when you are doing both the topics, कोरिलेशन पे बहुत फोकस करना होगा आपको. केस लॉज आपको डायरेक्टली नहीं पूछे जाते सेबी एग्जाम में, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लैरिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शुड नो द कोरिलेशन बिटवीन बोथ दीज पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलेटेड डॉक्ट्रिन्स ऑल्सो ओवर हियर. ये यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिवली करना होगा. कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको रिलेटेड डॉक्ट्रिन्स, रिलेटेड अमेंडमेंट्स थोड़े से ध्यान में रखने होंगे, तो ही आपकी स्टडीज कॉम्प्रिहेंसिवली होगी. Next is president. The next part is president and all other offices. Only their basic composition is also enough for you. Like council of ministers है for example. एक question आया था कि council of ministers का composition कितना % होना चाहिए. तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं भी जाते लेकिन आप इनका composition और इनका constitution अच्छे से पढ़ लेते हो. प्रेसिडेंट के लिए थोड़ा सा डिटेल में चले जाना कि प्रेसिडेंट के पावर्स क्या क्या हैं, जुडिशियल पावर्स क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड तो वो है ही, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स. बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनका बेसिक कॉम्पोजिशन, राज्यसभा का कॉम्पोजिशन, लोकसभा का कॉम्पोजिशन. सो लाइक दिस इफ यू आर गोइंग थ्रू द बेसिक कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, नॉट इन टू वेरी मच डिटेल बट द बेसिक थिंग्स ऑफ ऑल द ऑफिसर्स दैट आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन. स्टेट के भी जैसे गवर्नर है, इन सब का कॉन्स्टिट्यूशन उतना भी अगर आप देख लेते हो सो दैट इज़ इनफ. बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको. तो इसलिए मैंने इसको एक टॉपिक बनाया है. नाउ यू कैन से दैट मैम ये एक टॉपिक कहाँ से हुआ. तो ये एक टॉपिक इसीलिए हुआ क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में वो कवर नहीं करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम ऑफ कोर्स यू विल गो इन डिटेल, लेकिन जो एरिया ऑफ फोकस होगा आपका वो ऑन द प्रोमिनेंट थिंग्स विच आर आस्क्ड फ्रॉम दैट ऑफिसेस, कॉम्पोजिशन, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, उसको आपको अच्छे से करके एक टॉपिक में कंप्राइज हो जाता है. नेक्स्ट इज अमेंडमेंट प्रोसीजर, दैट इज आर्टिकल 368 एंड द बिल्स प्रोसीजर. बिल्स प्रोसीजर को यहाँ पे मैंने कंबाइन किया है. जैसे मनी बिल हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है. ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल. फाइनेंशियल बिल एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसका एक सबसेट है मनी बिल. तो इनको तीनों को आपने अच्छे से कर लिया. क्या प्रोसीजर है उसका आपने एक बेसिक आइडिया ले लिया, कितने रीडिंग्स के थ्रू बिल्स को जाना पड़ता है. अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है. स्टेट्स का कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट को अगर आपको अमेंड करना है तो स्टेट की बाउंड्रीज चेंज करनी है तो अमेंडमेंट का कुछ स्पेशल प्रोसीजर है क्या. तो ये बहुत ही कॉमनली एक्सपेक्टेड थिंग्स है. सो ऑल दीज थिंग्स फॉर्म द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड आई वुड सजेस्ट दैट डू दीज टॉपिक्स thoroughly. All of these topics are very important and 100% you will get many questions from these areas. And if you are preparing the expected questions from all the topics, then your chances of qualifying the exam are going to increase definitely. So go in this manner. एंड ऑल्सो एग्जाम हैज़ कम अप विद अ कैंपेन. कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे. सो ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कंसेप्चुअल वीडियोस के फॉर्म में लेकर आ रहे हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एट लीगल बी एंड सब्सक्राइब इमीडिएटली. डोंट मिस इट. कंपनी लॉ का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. यू कैन सी डे वाइज इट इज़ गोइंग ऑन. नाउ 20 नवंबर तक आ चुका है. हाउ अ कंपनी गोज पब्लिक, रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज नेक्स्ट टॉपिक है. सो टेक बेनिफिट ऑफ ऑल दीज कंटेंट दैट इज कमिंग टू you. Don't forget to subscribe and prepare 50% faster with iExamB. Thank you everybody.